Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the views on liberty of John Stuart Mills. लिबर्टी क्या है यहाँ पे? वो लिबर्टी को जॉन जॉन क्या करता है? लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. In 1832, Reformer Act was passed by the government of England. इट एक्सवा तो उसमें एक रिफॉर्मर एक्ट में क्या हो गया? अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट मशीनरी भी बना रही है, बढ़ा रही है, और साथ साथ में फंक्शन ऑफ स्टेट भी बढ़ा रही है. तो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? पीपल आर डिमांडिंग योर मोर लिबर्टी. सही बात है ना? आप काम बढ़ा रहे हो तो उतनी आज़ादी भी दो हमको. तो ये सारे हालातों को देखते हुए मिल पब्लिश्ड एन एसे दैट इज़ ऑन लिबर्टी, ताकि वो डिफेंड कर सके. केसेस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत ज़्यादा केसेस थे, ताकि वो सारा डिफेंड कर सके. उसका बुक जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड इट वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. He said act made by the government were tyrannical and interfered in individual freedom. J.S. Mill believed that the government comes into existence for social well-being. Political institutions find their basis in human will and interest. See, moving towards the next point, that was the meaning of liberty. Liberty means क्या है? It is the freedom of an individual. We need liberty to protect ourselves from undue interference of the state, right? वेलफेयर स्टेट में क्या, स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की और सोसाइटी की. बट इसका मतलब ये है क्या स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफियर करना चाहिए? नहीं. देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो. With reasonable interest restrictions of the state on liberty, everyone can enjoy liberty better. It creates an environment where development takes place. Mill was a great exponent of liberty. He defended the cases of individual liberty in the book on liberty. Then liberty क्यों चाहिए? हाँ, liberty इसलिए चाहिए ताकि we can protect the interest of the individual, right? अपनी सोसाइटी अच्छे से बढ़े, सब कोई, हर किसी का डेवलपमेंट अच्छे से हो, राइट? नीड लिबर्टी इज नीडेड टू एनरिचमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. इफ स्टेट डज नॉट प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सपांड देयर मेंटल फैकल्टीज, it is neither good for the individual nor for the government. Then ultimate value of the state depends upon the quality of individual. Then रिलेशनशिप बिटवीन द लिबर्टी एंड द स्टेट. अभी स्टेट एंड लिबर्टी इन दोनों का क्या संबंध है? मिल दोनों में एक रिलेशन है. मिल क्या बोलता है? ये एक जनरल प्रिंसिपल है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम, राइट? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कितना चाहिए? एकदम मिनिमम चाहिए इन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल. ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ही एडवोकेटेड अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिज्म. फिर मेल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड लिबर्टी बोलता है इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट. सी, यहाँ पे उसने इंडिविजुअल के 2 एस्पेक्ट बोला है. एक तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट. इंडिविजुअल एस्पेक्ट में क्या है? द इंडिविजुअल एस्पेक्ट विच कंसर्न हिम अलोन. और सोशल एस्पेक्ट क्या है? ये पूरा इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट है, दैट इज एन पार्ट ऑफ एन सोसाइटी. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, इंडिविजुअल आर sovereign over his own body and mind. See, individuals are sovereign over. Then other regarding actions क्या है? The actions of the individual which affect society can be regulated by the state. It is the social aspect of individual personality. Here, the society has the right of interference in individual action, but this interference must be reduced to minimum. Then Mill was against excessive state interference. See, he said state has a right of regulating the action of individual which affect the society. The state can compel the individual to perform the duties and obligation as the member of the society, but in action of individual which concern him alone, the state should not interfere. See, Mill's classification of liberty. See, Mill pleads for certain freedom for the individual without which he cannot develop his personality property. The freedom are as follows. See, मिल बोलता है, मिल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे
कि अगर आपको इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है जब तक आपका पर्सनालिटी प्रॉपरली डेवलप हो. देन दिस freedoms are as follow. Freedom of conscience. See, freedom of conscience. Then liberty of thought and its expression. See, then second is the liberty of thought and its expression. Then liberty of pursuit and taste. See, liberty of pursuit and taste. Third, next one is the liberty of association. Then liberty to pursue his own vocation in life. Then liberty of religion and morals. See, इन सब अभी लिबर्टी, अभी फ्रीडम आपको किस किस में चाहिए? फ्रीडम सोचने समझने में चाहिए, आपके जो भी थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए. फिर आपका टेस्ट, आपका फैशंस, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए आपको लिबर्टी चाहिए. हाँ, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सको, कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन कर सको, इस बात की लिबर्टी चाहिए आपको. और लिबर्टी, आप कोई भी रिलीजन चूज़ करो, कोई भी मॉरल रखो, इसकी आपको लिबर्टी ज़रूरी है. Mill has stressed on liberty of thoughts and expression. See, the society must follow the individual freedom of thought and expression. See, the society क्या है यहाँ पे? The society must follow the individual freedom of thought and expression. Society must not suppress individual's opinion on the plea that his opinions contradict to the commonly held opinion. See, the society must follow the individual freedom of thought and expression. और सोसाइटी क्या है? सिर्फ एक अकेले ओपिनियन के ऊपर सब कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए. लाइक एक कॉमन ओपिनियन रखना चाहिए, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट कॉमन ओपिनियन द डिसीजन शुड बी टेकन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट लीड्स टू द डिस्कशन एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ. सी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ वेरी यूजफुल. क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू द डिस्कशन एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ. राइट, अगर मैं आपको हर चीज़ आपकी एक्सप्रेस करने की परमिशन दूँ, क्यों चाहिए? ताकि आप डिस्कस कर सको, सच क्या है, गलत क्या है, ये सब समझ सको. फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन इंडिविजुअल लाइन. देयरफॉर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स विच एनरिच द सोसाइटी. सी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन क्या है? Leads to the development of personality on individual line. Therefore, variety of characters which enriches the society. Categories of people immune from liberty. See, Marx exclude the following categories of people from liberty. See, Marx क्या कर रहा है यहाँ पे? Marx excludes the following category of people from liberty. Mentally retarded people do not have the right to liberty. See, जो मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, लाइक हर किसी को आप लिबर्टी नहीं दे सकते. लिबर्टी के लिए भी कुछ लोगों के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं. जैसे जो दिमाग से नॉर्मल बच्चे नहीं रहते, नॉर्मल इंसान नहीं रहते, उनको आप राइट टू लिबर्टी नहीं दे सकते. क्योंकि इफ़ यू गिव देम राइट टू लिबर्टी, व्हाट दे कैन मिसयूज दैट, दे कैन हार्म एनीवन. राइट, तो ये जो मेंटली रिटार्डेड पीपल रहते हैं, दे डोंट हैव राइट टू लिबर्टी. द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एन्जॉय द लिबर्टी. सी, यहाँ पे जो बच्चे हैं, सी, अपन अपने इंडिया में तो क्या है, अबाउ 18 ईयर्स दे डोंट हैव राइट टू वोट एंड ऑल. राइट, तो अगर अपन छोटे बच्चों को भी सारी लिबर्टी दे देंगे तो क्या है, वो तो बचपन में ही बिगड़ जाएंगे. सही बात है ना? अगर उनको नहीं, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक वगैरह बोलेंगे, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो क्या है, वो दे विल लर्न द डिसिप्लिन. और जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें वो खुद अपने आप सीख जाएंगे. सो द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एन्जॉय द लिबर्टी. लिबर्टी इज़ नॉट फॉर द बैकवर्ड पीपल और रेसेस. सी, लिबर्टी, ये जो बैकवर्ड पीपल वगैरह है उनके लिए लिबर्टी नहीं बोल रहे. मीन्स आई डोंट नो, ये बैकवर्ड पीपल को लिबर्टी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मेंटली रिटार्डेड पीपल को लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, आई एग्री. बच्चों को लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, आई एग्री, बट नॉट दिस बैकवर्ड क्लास. एनीवे, ये मिल का थॉट है, मेरा नहीं है बाबा. मेरे थॉट पे तो लिबर्टी बैकवर्ड पीपल को भी देनी चाहिए. एनीवे, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है. फ़िलहाल तो अपन जॉन स्टुअर्ट मिल के ओपिनियन पढ़ रहे हैं, तो लेट्स डू दैट ओनली. Then criticism on Mill's view on liberty.
See, criticism on Mill's views on liberty is as follow: oversimplified categorization of human action. See, the division of human action as done by Mill is not at all possible. See, अभी यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ ह्यूमन एक्शन बोल रहे हैं, जो मिल ने किया है, वो एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं. नो इंडिविजुअल इज एन आइसोलेटेड यूनिट इन हिमसेल्फ. कोई भी इंडिविजुअल अकेला अंदर अंदर रह ही नहीं सकता, उसको सोसाइटी ग्रुप कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना रहने को. तो सेम थिंग, नो इंडिविजुअल इज आइसोलेटेड यूनिट इन हिमसेल्फ. ईच एक्शन ऑफ इंडिविजुअल will definitely affect other directly or indirectly. See, each action of the individual. See, एक एक्शन मैंने गलत किया, अगर मैंने आपको गलत कुछ भी पढ़ाया, सिलेबस के बाहर पढ़ाया, तो आपको उसका कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं, उसका आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है. एंड व्हाट विल हैपन? इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट यू, राइट? तो क्या है, मेरे को भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, यानी मेरा फीडबैक वगैरह ख़राब आएगा एंड और मेरे को वैसा इफेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट आपको होगा. तो क्या है, ईच एक्शन ऑफ इंडिविजुअल विल डेफिनेटली अफेक्ट अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एट एनी मोमेंट एनी इंडिविजुअल एक्शन कैन बी सेल्फ रिगार्डिंग एज वेल एज अदर रिगार्डिंग स्टिमुलसली. एट एनी मोमेंट क्या है, इंडिविजुअल्स एक्शन कैन बी सेल्फ रिगार्डिंग एज वेल एज अदर्स रिगार्डिंग साइमल्टेनियसली. सी, आपका एक्शन कुछ भी हो, सही गलत, दूसरों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट ऑन इट. देन मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है अपना? इंडिविजुअल नो जज ऑफ हिज वेलफेयर. सी, मील इज ऑफ द ओपिनियन. क्या है मील का ओपिनियन? क्या है यहाँ पे? Mill is of the opinion that individual know his welfare and therefore he should be allowed to give vent to his feeling without any state interference. See, अब मिल क्या क्या ओपिनियन है, इंडिविजुअल को पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करूँगा तो मेरा भला होगा, राइट? तो क्या है, उसको ये सारे फीलिंग एक्सप्रेस करने की शुड गिव हिम लिबर्टी विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस. और स्टेट में इसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. बट द रियलिटी ऑफ लाइफ रिवील्स अ रिजर्व पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स. सी, बट द रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? इट विल रिवील्स अ रिवर्स पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल. एग्जाम्पल, अ ड्रंकर्ड डज नॉट नो हिज गुड व्हेन ही टेक्स वाइन. सही बात है ना? जिसको दारू पीने की वगैरह आदत है, उसको पता नहीं है ना कि बाबा इफ़ आई ड्रिंक वाइन या मैं कुछ भी ऐसे नशे वाली चीज़ें करूँ तो इट इज़ नॉट गुड बाय. तो उसको पता है कि उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, बट उसको आदत है, वो पीता है, और पीने के बाद क्या होता है, वो अपने होश में नहीं रहता. बराबर है? सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशनल्स. मिल डज नॉट टेक केयर फॉर सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन. सी, मिल क्या है कि अपने जो सोशल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, उनका ध्यान मिल ने नहीं रखा है. ही डजंट केयर फॉर एनी सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन. टू हिम इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी फॉर हिज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस. सी, टू हिम क्या है? सी, टू हिम इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी फॉर हिज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन. It means he does not care for social custom and tradition. Example, if any individual walks naked on the road in violation of social custom, it is pursuit of his interest. He cannot do so. See, अब आप एग्जाम्पल कितना भारी दिया है उसने. जानेंगे, walking naked on the road does not violate any state law or interference with other rights of liberty, but as such that violates social norm for which will has no regard. See, भी रास्ते पे आप बिना कपड़ों के वगैरह घूमोगे एज अ सोशल कस्टम एंड ऑल, तो इज़ इट गुड? नो, इट इज़ ठीक है, आपके कस्टम में है आप करो, बट क्या है, आप स्टेट लॉ वगैरह इंटरफेरेंस करना ये आपके राइट के खिलाफ है क्या? नहीं, बट ये अपने सोशल नॉर्म्स में नहीं बैठते. इट विल अफेक्ट अवर सोशल नॉर्म्स ओवर हियर. देन मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर.
A Mick Mill is of the opinion that variety is the spice of life. According to him, if the individual are allowed to act in their own way without any interference of the state, this will result in creation of variety of character, and as such this variety would enrich the human society. अब मिल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अभी मिल इज ऑफ द ओपिनियन दैट बहुत से अलग अलग लोग रहते हैं अपने सोसाइटी में, हर कोई एक जैसा रहता है क्या? नहीं रहता है. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर इंडिविजुअल को अपन उसके हिसाब से एक्ट करने दे दें, हाँ, विदाउट इंटरफेयरिंग ऑफ द स्टेट, विदाउट इंटरफेयरिंग ऑफ द स्टेट उसके हिसाब से एक्ट करने दे दें, तो क्या होगा? सोचा क्या रिजल्ट क्या आएगा उसका? इट वुड बी क्रिएशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर, मतलब हर नया नया कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर आएगा, और क्या होगा? इट वुड एनरिच द ह्यूमन सोसाइटी. अरे बाप रे, अपन बहुत पीछे रहे हैं. बट मिल does not consider that the state's act of regulation of human conduct can create disciplined, educated and cultured individuals. See, but Mill क्या है? Mill does not consider that the state acts of regulation of human conduct. अभी स्टेट जो एक्ट बनाती है वो ह्यूमन रेगुलेशन के लिए वगैरह, उससे क्या लगता है आपको? डिसिप्लिन, एडुकेट एंड कल्चर्ड इंडिविजुअल हो जाएंगे. सी, अभी रूल्स रेगुलेशन अपनी भी गवर्नमेंट बनाती है, आप देखते ही हो ना, इंडिया में गवर्नमेंट बनाती है, तो इससे कुछ होता है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है ना. जैसे देखो, सिग्नल तोड़ने पे आपको फ़ाइन गिरता ही है आपके, भले ही आप उस वक्त पेमेंट ना करो, बट जब भी आपको पुलिस पकड़ेगी उस गाड़ी पे जितना भी बिल रहेगा यू आर सपोज टू पे. अब पुलिस तो सीधा क्रेडिट कार्ड भी मांगती है, कार्ड मांगती है, कार्ड स्वाइप करके आपका जो भी अमाउंट रहता है अगला पिछला सारा क्लियर कर लेती है, राइट. तो क्या है, आप सिग्नल अगर देखते हो कैमरा है क्या इधर उधर, कैमरा नहीं है तो तोड़ने की हिम्मत करते हो. पता है यहाँ पे कैमरा है तो सिग्नल तोड़ने की हिम्मत करते हो क्या? जल्दी कोई हिम्मत नहीं करता. क्या इससे यू आर ट्राइंग टू बी व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट सम डिसिप्लिन, इट इज ट्राइंग टू एडुकेट पीपल एंड इट इज ट्राइंग टू डेवलप अवर कल्चर एंड ऑल. द इमरजेंसी ऑफ द सोसाइटी so called variety of character may, instead of enriching society, pervert the society, which may degenerate into groups more freedom harmful for the development of the personality. See, the emergence of the अभी जो आ रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर वगैरह आ रहे हैं, हाँ, ये क्या है? सोसाइटी को एनरिच भी कर सकते हैं, सोसाइटी को ख़राब भी कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीडम. हाँ, फ्रीडम पे डिपेंड करता है, पर्सनालिटी पे, सब पे डिपेंड करता है. सी, कुछ एरिया में क्या है, बहुत ही गंदे लोग रहते हैं. लाइक एक तो गलत काम करोगे, वहाँ पे लोग गलत काम भी करते हैं, और कोई बाहर वाला आके उनको बोले अरे तुम गलत काम करो तो सारे इकट्ठा के उसी को मारते हैं. ऐसी भी सोसाइटीज़ है अपने इंडिया में. और कुछ सोसाइटी ऐसे है कि किसी ने गलत काम किया तो वहाँ के समझा देंगे प्यार से कि गलत काम मत करो एंड ऑल बोल के, राइट. Means does not realize the impulse and desire of the individual may be unhealthy and are not always a sure guide to proper development of the personality or proper social action. See, मिल को रियलाइज ही नहीं होता कि अब डिज़ायर ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब कितना, अगर बहुत ज़्यादा अपन इंडिविजुअल पर रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो कितना अनहेल्दी हो जाएगा. हाँ, इससे उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, ना ही उनका प्रॉपर सोशल एक्शन होगा. Mill exclude some people from availing liberty. See, Mill क्या कर रहा है यहाँ पे? Mill exclude some people from availing liberty. Example, backward race. See, मैंने आपको बोला था ना बैकवर्ड रेस को लिबर्टी क्यों नहीं देनी चाहिए, ये मुझे समझा ही नहीं मिल का व्यू. तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बैकवर्ड क्लास को लिबर्टी नहीं देना, ये एक ड्रॉबैक है. Hence, critics comment on him as Mill was the prophet of empty liberty and an abstract individual. तो फिर लोग कमेंट क्या करते हैं मिल के ऊपर, गलत किया कि मिल क्या है, लिबर्टी को खोखला बनाना चाहता है, एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल. ही वॉज अवेयर ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास. सी, मिल को पता था कि बाबा
वर्किंग क्लास को लोग कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और किस हद तक करते हैं, इसलिए उसने क्या किया, उनको लिबर्टीज नहीं दी. बट स्टिल मिल डिड नॉट वांट अ रेडिकल चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम. इतना सब होने के बाद भी क्या है, मिल को अपना जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए. फॉर हिम सोशलिज्म वॉज नॉट द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. उसके लिए क्या था, सोशलिज्म क्या था, it was not the right answer to this problem. He was a firm believer in capitalism. See, Mill क्या था, Mill firmly believed in capitalism. He had humanitarian approach towards the problem of exploitation. See, he had a humanitarian approach towards the problem of exploitation, but he was in favor of equality and egalitarian rule. See, बट मील को क्या चाहिए, हर जगह इक्वालिटी चाहिए. इक्वालिटी पॉसिबल है क्या, नहीं हर जगह पॉसिबल है, बट स्टिल ही फेवर्ड इक्वालिटी एंड एग्लिटेरियन रूल. ही वांटेड एवरीथिंग विद इन द लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क. सी, मील को सब कैसा चाहिए था, सब कुछ उसको लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर चाहिए था. और कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हुए कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क वैसे उसको चाहिए था. He had believed in ethic rule, elite rule. See, he believed in elite rules. According to him, the society will grow and make progress only under the exclusive guidance of the elite class. See, according to him क्या है, the society will grow and make progress. Society कब बढ़ेगी, कब प्रोग्रेस होगी, ओनली अंडर द एक्सक्लूसिव गाइडेंस ऑफ द एलाइट क्लास. मतलब एलाइट क्लास यानी क्या, अपर क्लास. मतलब अगर आप सब कुछ अपर क्लास के हाथ में दे दो, अगर आप अपर क्लास को इम्पोर्टेंस दो, राइट, उनको हर चीज़ की लिबर्टी दो, तो क्या है, आपका सोसाइटी अच्छे से ग्रो होगा, अच्छे से प्रोग्रेस होगा. बिकॉज दे आर द क्लास ऑफ बेटर पीपल, दिस आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स आर रियल जेम ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ देम सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल. सी, क्यों वो सब कुछ लाइक अपर क्लास के गाइडेंस के अंदर सब कुछ होना चाहिए, क्यों ऐसे बोल रहा है वो, क्योंकि दे आर द क्लास ऑफ बेटर पीपल. ये जो अपर क्लास लोग रहते हैं वो लाइक दे आर द बेटर क्लास पीपल, राइट, एंड दे आर द रियल जेम ऑफ द सोसाइटी. रियल जेम ऑफ द सोसाइटी यानी क्या, जब भी किसी पर भी मुसीबत आती है तो क्या है, बहुत से लोग, ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये सामने वगैरह आते हैं. जैसे अब रतन टाटा ने देखो, राइट, कोविड से बहुत से लोगों को मदद की. कोविड के कारण जब बाढ़ आई थी आसाम में वगैरह, तभी भी रतन टाटा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लोगों को. लाइक अगर रतन टाटा है ना, ही इज़ द रियल जेम मैन. लाइक इतना पैसा है बट फिर भी डाउन टू अर्थ है, राइट. अगर किसी एम्प्लॉय की शादी रहेगी, आप वो एम्प्लॉय अगर जाके उसको इन्वाइट करें ना, तो वो शादी में जाएंगे और उस शादी में जाके खाना भी खाएंगे. मतलब वो इतना रियल जेम मैन है वो. आई रियली बिलीव दैट मैन. हाँ, मतलब दिल से वो इतना अच्छा इंसान है ना. देखो वो कार में जा रहा था, नैनो कार क्यों निकाली उसने, डू यू नो दैट स्टोरी. वो 4 व्हीलर में था, वो जा रहा था, उसने देखा तेज़ बारिश आ रही है, फिर भी लोग 2 व्हीलर पे ऐसे सारे भीग रहे. कई जगह तो कोई फैमिली को लेके अपने 2 व्हीलर पे जा रहा था बट पूरे भीगे हुए थे. तो उसने क्या किया, ही थॉट कि बाबा मैं एक छोटी सी ऐसे कार बनाऊँ जो मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सके और उनको बारिश में भीगना ना पड़े एंड ऑल. मतलब वो थिंकिंग से उसने नैनो कार निकाली. भले ही वो नैनो कार बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुआ उसका, बहुत ज़्यादा मार्केट में रह नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑल, बट उसका पीछे का थॉट प्रोसेस जो था ना, इट वॉज एन अमेजिंग, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस, राइट. वो बहुत नेक काम करते हैं रतन टाटा, राइट, और उनकी वाइफ भी वैसे ही है. एंड सेकेंड थिंग इज सुधा मूर्ति भी बहुत अच्छा काम करती है इन सब में. दे आर द रियल जेम ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ देम सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल. ये जो अपर क्लास के हाथ में आप दे दोगे तो क्या है, ये लोग रियल जेम ऑफ द सोसाइटी रहते हैं और उन्हीं की वजह से क्या है, अपना सोशल प्रोग्रेस बढ़ते जाता है. क्यों, बहुत से लोग किसी ना किसी को तो आइडल मानते हैं, ऐसे बड़े आदमी को आइडल मानते हैं, तो दे ट्राई टू बी लाइक हिम, राइट, कि बाबा नहीं मेरे को इनके जैसा बनना है, नेचर वाइज मेरे को उनके जैसा ही पैसा कमाना है एंड ऑल.
तो वो एक थॉट रहता है, वो बहुत लोग वैसे बड़े बड़े लोगों को आइडल मानते हैं एंड दे ट्राई टू कॉपी हिम एंड ऑल। इससे क्या होगा, वो उस हिसाब से उनकी राह पे चलेंगे, तो क्या है, उनका भी भला होगा और सोसाइटी का भी भला होगा। We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll study the representative government. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.